Good morning, 11th class. So, we were on chapter number 10 of history, displacing indigenous people. हमने basically समझ लिया है who were the indigenous people, native people, how did the Europeans come and take over their land, how were they totally different in the kind of mindset that the natives had and the mindset that the Europeans had. And we will see how these people now actually lost their lands. Which people? The native, यानी कि जो यूरोपियंस हैं उन्होंने कैसे जो नेटिव्स हैं उनसे उनके लैंड ले लिए, एंड वी विल सी दैट दे आर नॉट गिविंग देम एनी काइंड ऑफ राइट। और समवेयर हमने ये भी देखा था बिफोर, जब हमने यूएसए से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था, देन वी सॉ कि इनिशियली तो इन लोगों ने जब आपस में कुछ कुछ लैंड एरिया को खरीद भी लिया था, एंड दे डिड नॉट कंसल्ट द नेटिव्स एट ऑल. So, and similar, in the similar manner, we will also notice that these people are now even taking wrong ways out to somewhere take land from the natives and pushing them away from their original areas. Okay, so this is what we will be studying in today's class. So let us move on to our topic, how the natives lost their land. So in USA you will see that as a settlement expanded, हमने देखा था कि when they were expanding towards the western side, then what happened was these people were somewhere signing treaties and selling lands etc. है ना, और अपने एरिया को expand कर रहे थे. बट नाउ वी विल सी कि इन्होंने क्या किया था, नेटिव्स को समवेयर ईदर उनको समवेयर मना लिया था, कन्विंस कर लिया था, और इवन समटाइम्स दे इवन फोर्सफुली टुक देयर लैंड्स आफ्टर साइनिंग द ट्रीटीज. नाउ ये तो हुआ ही था, दे वर ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ओवर द नेटिव्स, एंड नाउ वी विल नोटिस कि कैसे उनसे उनका लैंड जो खरीद रहे हैं वो भी गलत तरीकों से खरीद रहे हैं. कैसे? एक तो उनसे ट्रीटी साइन करवा लेते थे इधर फोर्सफुली, या उनको इंड्यूस कर देते थे कि आप कर लो, एंड यू डू दिस देन दिस विल हैपन एंड इट इज गुड फॉर यू, दिस एंड दैट. ओके, so now the prices that were paid were very very low. Okay, and there were instances, there were many example where the Americans, यहाँ पे Americans का मतलब क्या है, this is the term used to describe the European people of US. ठीक है, अब now understand that these people what they were doing, they were even cheating them by taking more land or paying the less that they promised. मतलब इधर तो बोल रहे थे आप हमें इतने एकर्स इतने एरिया दो एंड वील गिव यू दिस मच ऑफ मनी, और बाद में ज्यादा लैंड ले लेते थे. अदरवाइज अगर उतना ही लैंड ले रहे थे तो उनको पैसे कम दे रहे थे, बिकॉज दीज पीपल वर समवेयर वी कैन से वेरी वेरी innocent kind of people, and they were not that cunning people, the natives, so they did not understand things and they were just accepting it. Now chalo ye to fir bhi still acceptable. Now we will notice what happens. Even the high officials saw nothing wrong in depriving the native people of their land. मतलब उनके ओरिजिनल लैंड से उनको हटा रहे हैं, और इसमें भी जो इवन दी हाई ऑफिशियल्स हैं उनको कुछ गलत नहीं कर रहे हैं. जैसे कि एक एग्जांपल है ऑफ जॉर्जिया, विच इज अ स्टेट इन यूएसए. Officials argued that a tribe was there, and the tribe was Cherokee tribe. Okay, I think you can clearly see it on your screen still. ये जो है Cherokee tribe. Okay, now these tribe actually were governed by the state laws but could not enjoy the rights of the citizen. तो ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है ना. आप बोल रहे हो आपको लॉस तो कौन से मानने पड़ेंगे, जो हमारे स्टेट के हैं, बट हम आपको सिटीजन्स नहीं मान रहे, देन ऑब्वियसली व्हाई शुड दे एक्सेप्ट दोज लॉज एज वेल. बोल रहे नहीं, यू विल हैव टू एक्सेप्ट आवर लॉज एंड वी विल गवर्न यू अकॉर्डिंग टू हाउ वी विश, अकॉर्डिंग टू आवर गवर्निंग सिस्टम, but you are not the citizens. Okay, so then ye jo, and this was actually much more shocking, because among the native people these Cherokees were the one who made the most effort कि हम English
सीखें, हम जो इनका सो कॉल्ड अमेरिकन वे ऑफ लाइफ है वो सीखें, हम उसी टाइप के हो जाएं, सो दैट एटलीस्ट हमें मतलब जब हम इनके लॉज फॉलो कर रहे हैं तो उसी टाइप का हमको सिटीजनशिप मिल जाए. ओके, सो दे वर ट्राइंग देयर हार्ड, बट देन on the counterpart, the Europeans were not giving them any rights. Instead they were saying you will be ruled according to our wishes, but we will not give you the equal rights. Okay, now after that what happened was in 1832 an important judgment was announced by US chief justice. ठीक है, US के chief justice थे जिनका नाम था जॉन मार्शल. Now this is the person who said that Cherokees were a distinct community, अलग community है, उनकी अपनी टेरिटरी है जिसमें बेसिकली इन विच द लॉज ऑफ जॉर्जिया हैड नो फोर्स. उनको एकदम फोर्स नहीं अप्लाई करना चाहिए चिरोकीज पर, क्योंकि एकदम डिस्टिंक्ट कम्युनिटी अपने हिसाब से रहते हैं, अपने एरिया में रहते हैं. तो जो जॉर्जिया है उनका कोई इनके ऊपर फोर्स नहीं चलना चाहिए, और ये जो है इनके पास पावर होनी चाहिए किसकी, अपने डिसीजन खुद लेने की, सॉवरेंटी की होनी चाहिए. मतलब नोबडी एल्स शुड हैव द राइट टू डिसाइड ऑन व्हाट इज टू बी डन फॉर देम और रिगार्डिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वाज सेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ यूएस 1832 में. जॉन मार्शल ने ये बात बोली थी. ओके, ही सेड इट, बट देन डू यू थिंक द सेम वुड हैव हैपेंड? नो. यूएस प्रेसिडेंट जो हैं बेसिकली जिनका नाम उस टाइम जो थे एंड्रयू जैक्सन, उनकी वैसे तो एक रेपुटेशन थी कि वो इस चीज के अगेंस्ट थे कि किसी भी एक सेक्शन को स्पेशल प्रिविलेज मिले, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो इकोनॉमिक हो. पर व्हेन इट केम टू दीस नेटिव पीपल ही वाज टोटली अ डिफरेंट पर्सन. जो इन्होंने चीफ जस्टिस ने बोला था इसको इन्होंने एकदम भी इनकी बात को नहीं माना. He did not accept what was suggested or what was said by John Marshall. Instead, he somewhere diffused. He diffused whatever was said by the Chief Justice, and after that, he ordered the U.S. Army to evict, to remove all the people belonging to this tribe, that is the Cherokees, from their land and drive them to the Great American Desert. यानी उनको यहाँ से तो निकालो, ठीक है, यानी हमारा जो जिन एरिया पे इनको कंट्रोल चाहिए था वहां से निकालो, एंड ड्राइव देम बैक टू द ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट. ऑब्वियसली बहुत फार ऑफ था वो एरियाज, एंड देन ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस जो है दैट विल बी ऑफ द सिमिलर सॉर्ट. ऑफ द 15,000 पीपल basically were forced to go. Over a quarter died along the trail of tears. So just imagine कि जब वो इतने एरिया में इतनी दूर तक जा रहे थे तो एंड जिसमें से जितने भी टोटल लोग थे दैट इज बेसिकली 15,000, उसमें से ओवर अ क्वार्टर ऑफ देम डाइड along the trail of tears. मतलब ऑब्वियसली जब वहां गए इट वाज अ वेरी यू कैन से नॉट गुड कंडीशन, एंड इन बिटवीन इतनी खराब कंडीशन थी कि उसको जैसे टीयर्स से डिस्क्राइब कर दिया, समवेयर ट्रेल ऑफ टीयर्स, एंड इट समवेयर रिजल्टेड इन डेथ ऑफ सो मेनी पीपल. सो यहाँ पे अपने को क्या समझने की जरूरत है, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड दीज Europeans were somehow making the natives move to the other areas from their original areas, and in between somewhere they were finding, when they were sending them to the great trails, obviously बीच में आपस में revolts हो रहे थे आपस में, somewhere there was one or the other kind of fight that was going on, because of which many people died, and then finally traveling also to such a far off areas which was totally away from their original place. Okay, so अब क्या हुआ कि those who took the land occupied by the tribes justified it by saying the natives did not deserve to occupy it because they are not using it to the maximum. Now understand, हमेशा क्या होगा, whenever you are doing something wrong you will try to justify it. हम बोलेंगे नहीं नहीं ये तो इसलिए हुआ था, ये इसलिए किया गया था. तो how will they justify कि जो नेटिव्स थे उनके ओरिजिनल लैंड से उनको ही हमने हटा दिया. तो इन्होंने क्या एक्सक्यूज दिया, व्हाट वाज देयर एक्सक्यूज, दे सेड दैट द रीजन, यू कैन से द रीजन इज
कि ये जो नेटिव है ना, ये तो एक्चुअली में डिजर्व ही नहीं करते हैं आना। क्यों नहीं डिजर्व करते? क्योंकि है ना, इनके पास लैंड है भी, पर फिर भी इन्होंने इस लैंड को क्या किया, कंप्लीटली यूज किया ही नहीं। तो जब आप कंप्लीटली इसको यूज नहीं कर रहे हो, व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट कंप्लीटली, देन ऑब्वियसली क्या होगा, यू डोंट डिजर्व इट। मतलब असली तो हमें ही यूटिलाइज करना आता है, हमको ही इसको यूज करना आता है, इसीलिए इस एरिया के ऊपर राइट जो है वो हमारा ही होना चाहिए, क्योंकि हम इसको यूज में कर सकते हैं। नेटिव्स तो इधर रह रहे थे, देन ऑल्सो दे वर नॉट यूटिलाइजिंग इट, दे वर नॉट यूजिंग इट। ओके, इस इतना ही नहीं, व्हाट एल्स वर दे सेइंग, दे वर सेइंग दैट ये जो नेटिव्स है ना, ये बहुत लेजी पीपल हैं। और समवेयर क्यों लेजी है, क्योंकि ये काम मतलब पूरा यूटिलाइज करते ही नहीं चीजों को, और दे डिड नॉट यूज देयर क्राफ्ट स्किल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मार्केट्स। ना ही तो इतने मतलब इनके पास स्पेशल टैलेंट है, ये लोग क्राफ्ट जो पहले एक्सचेंज करते थे, ये लोग तो मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते ही नहीं एक्स्ट्रा, कि हम मार्केट में बेचे, प्रॉफिट अर्न करें। So that means these people, as they said, that these are lazy, they do not use their craft skill to produce goods for markets, and they are not interested in learning English or dressing correctly. मतलब इनके लिए dressing correctly का मतलब क्या था, you dress according to the Europeans, that is the way how you should get dressed। तो ना तो अच्छे से ड्रेस कर रहे हैं, ना तो ये इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, ना तो ये लैंड को यूटिलाइज कर रहे हैं, ना तो ये मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग दैट दे शुड बी गिवन दिस लैंड। ओके, और इतना ही नहीं अबाउट लैंड, व्हाट एल्स वर दे सेइंग, they were saying कि they तो actually deserve to die out only because they are not doing anything। ठीक है, that means just see the kind of excuse they are saying, or see the kind of thinking that they are having। okay, they and then what were they doing, जो prairies थी उनको clear कर रहे थे, वहां पे farms बना रहे थे, और ऑब्वियसली जो वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे बाइसन वगैरह हैं उनको मारा जा रहा था। एंड ऑल्सो दे वर सेइंग प्रिमिटिव मैन विल ऑल्सो डिसअपियर, जैसे कि प्रिमिटिव एनिमल्स, मतलब somewhere they are saying that they do not even deserve to live, and somewhere they will also die off as the primitive animals go get extinct or die off। एंड ये किसने लिखा था, बेसिकली एक फ्रेंचमैन जो आया था सब उस एरिया के टाइम, ही सेड दिस। ओके, so obviously this is something, again if we notice, that is somewhere we can clearly see कि किस टाइप की ये लोगों की थिंकिंग थी और क्या सोचते थे, और इसीलिए किस तरीके से इन्होंने नेटिव्स को अपनी ही स्पेस से निकाला, एंड ऑब्वियसली उनके रिसोर्सेज और बाकी चीजों पे भी कंट्रोल कर लिया। ओके, so now along with this we also need to look into few more aspects, वो भी देख लेते हैं। Often we'll see the natives were pushed westwards, given land elsewhere, but often they moved, often moved again if any mineral, lead or gold or oil was found on their lands. Now many tribes were forced to share the land originally occupied by one tribe, thus leading to quarrels between them। अब देखो क्या बोल रही है, पहले तो इन्होंने क्या बोला नेटिव्स को कि है ना, दिस इज द एरिया वी विल हैव कंट्रोल ओवर, यू मूव अ लिटिल बिट वेस्टवर्ड, उनको वेस्टवर्ड का थोड़ा एरिया दे दिया, और ऐसे बोल दिया नहीं ये एरिया आपका ही रहेगा। बट अब सपोज थोड़े टाइम बाद उस एरिया में कोई मिनरल डिस्कवर हो गया है, या लेड या गोल्ड डिस्कवर हो गया, देन व्हाट विल दे से, दे विल से इस एरिया से भी मूव करो, वी विल टेक ओवर दिस एरिया अगेन। ये तो हो गया। अब क्या, अब क्योंकि ये लोग हर जगह से इनको पुश करे जा रहे हैं, तो अब एक एरिया जहाँ पे कुछ ट्राइब्स रह रही हैं वहां पे दूसरे ट्राइब्स को भी भेज दिया। अब दूसरे ट्राइब्स को भी अगर वहां भेज देंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वो आपस में ही लड़ेंगे कि ऑब्वियसली ये हमारी एरिया, व्हाई आर यू कमिंग ओवर आवर एरिया एंड यू आर ट्राइंग टू टेक मोर कंट्रोल ओवर इट, दिस एंड दैट। So what is this being done? Somewhere now they are quarreling among themselves only। अब उसके बाद उनको धीरे धीरे क्या कर दिया गया, बहुत स्मॉल एरियाज में ही लॉक ऑफ कर दिया कि आपके लिए बस इतनी एरियाज है, जितने भी आप लोग ट्राइबल लोग हैं उनके लिए हम सबने सिर्फ इतनी छोटी सी एरिया बना रखी है, आपको इसी में कंट्रोल में, आपको इतने एरिया में ही रहना है, और इसको बोल क्या दिया, रिजर्वेशन।
ठीक है, मतलब ये जो एरिया जो रिजर्व्ड है बेसिकली रिजर्वेशन है किसके लिए है, ट्राइबल पीपल इन टर्म्स नेटिव पीपल के लिए है, ठीक है। एंड समवेयर ये ज्यादातर ऐसे लैंड होते थे जिनका ना उनसे पहले कहीं पे कोई कनेक्शन ही नहीं था, मतलब उनके बहुत फार ऑफ एरिया से होते थे, दे हैड नो अर्लियर कनेक्शन विद द एरियाज वेयर दे वर सेंड व्हिच वर कॉल्ड द रिजर्वेशंस, ठीक है। एंड दे ऐसा नहीं है कि दे gave up without a fight, they did not give in without a fight, they were also fighting but obviously they could not be victorious। अब इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिकली बहुत सारी वॉर्स हुई थी, एज यू कैन सी वन ऑफ देम इन द पिक्चर्स एज वेल। नाउ ये जो पिक्चर्स है इससे रिलेटेड देख लेते हैं। ये जो पिक्चर है इसमें भी समवेयर यू कैन से देयर वाज अ काइंड ऑफ वॉर। प्रीवियस भी जो हमने वो ट्रेल ऑफ टीयर्स देखा है उसमें भी सम काइंड ऑफ वॉर इज हैपनिंग रिलेटिंग टू दिस ओनली। नाउ ऑब्वियसली काफी सीरीज ऑफ रिबेलियन हुए थे, यूएस आर्मी ने क्रश कर दिए थे सीरीज ऑफ रिबेलियन इन 1865 to 1890, and in Canada there were armed revolt by the Métis। Now Métis revolt you can see in this picture। तो ये रिवोल्ट जो हुए थे अगेन व्हाई वर दीज बीइंग डन, दीज वर बीइंग डन बिकॉज द दीज सो कॉल्ड यूरोपियंस or the Americans were now taking on their places and making them to just settle in the areas of which they were totally unknown and were very far off from their original places। So US army crushed a series of rebellion from 1865 to 1890, and in Canada there were armed revolts by the Métis, the people of native European descent, now between 1869 and 1885। but जो भी हो whatever it was, आफ्टर दैट दे गेव अप, मतलब इनिशियली तो बहुत उन्होंने कोशिश की फाइट करने की, बट आफ्टर अ सीरीज ऑफ वॉर व्हाट हैपेंड, दे वर नॉट एबल टू कंटिन्यू बिकॉज दे वर नॉट एबल टू विन, बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग ज्यादा they were more equipped and they were more somewhere good at warfare if we try to talk in terms of the यू कैन से जो आर्मामेंट्स और ये सारी चीजें जो इनके पास थी उससे रिलेटेड। ओके, सो दिस इज बेसिकली हाउ दीज पीपल टुक ओवर द लैंड ऑफ द नेटिव। Okay, so here we can just understand that they have taken a lot of you can say रॉन्ग प्रैक्टिसेस। एक तो भाई गलत तरीके से ले लेते थे, कम पैसे देते थे और उसके बाद इनको रिजर्व में डाल दिया, मतलब इनके एक जगह से दूसरी जगह अपने रिसोर्सेज मिल जाते थे तो इनको शिफ्ट करते रहते थे, एंड फाइनली इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उसको क्रश कर दिया गया था। सो दिस इज हाउ द यूरोपियंस took control over the native people's land। So basically a box is also given on your page number 223. If you read that box carefully, you will notice that in 1854 the president of US received a letter from native leader, and the president had actually asked the chief to sign a treaty giving a large part of the land they lived on the American government। तो मतलब जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला था हमें काफी आपके लैंड का हिस्सा चाहिए बिकॉज यू आर एक्चुअली लिविंग ऑन अमेरिकन गवर्नमेंट एरिया। सो दिस चीफ रिप्लाइड दैट हाउ कैन वी सेल द स्काई, हाउ कैन वी बेसिकली सेल द स्पार्कल ऑफ द वाटर दैट, एंड देन ही सेज अर्थ इज सेक्रेड फॉर अस, everything relating to this area is not materialistic for us, we consider everything very sacred, we have never thought of selling our land because for us the land is not a piece of something to be exchanged or maybe something on which is to be sold to somebody just as a commodity। So they actually had lot of you can say kind of attachment to the land, and they did not consider it just a commodity or just a thing to sell off, somewhere they considered it very sacred and something that should be kept or preserved very nicely, and also should be
somewhere ऐसे लगेगा they considered it very holy. So then he said, okay, we will give, but then this is something related to our ancestors and it should be always kept in a sacred manner. So इस तरीके से हमें ये पता चलता है through this box basically कि how these people considered their land to be, and they did not consider it just a piece of, you can say, surface, or just a piece of the crust. They consider it a very, you can say, sacred thing, and much more above than just a piece of non-living thing. They attach lot of emotions and lot of importance to it. Somewhere they considered it very holy. Okay. So और जबकि जो अमेरिकन, जो सो कॉल्ड अमेरिकन, दैट इज यूरोपियंस है, दे जस्ट कंसिडर्ड इट एट समथिंग टू अर्न मोर प्रॉफिट. जितना भी रिसोर्सेज हैं इसमें, वो सारे के सारे हम क्या कर ले, यूटिलाइज कर ले. ओके, दैट इज व्हाट इज गिवन इन दिस बॉक्स. देयर इज वन स्मॉल box given on your page number 223 towards the corner of your book again. This is regarding anthropology. Now अभी तक हमें पता है एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है. बेसिकली स्टडिंग अबाउट द human culture and human behavior, etc. So basically it is significant that it was at this time around 1840s that this subject was introduced in North America out of curiosity to study the difference between the native primitive communities and of Europe, and matlab, or the civilized communities of Europe. Sorry, primitive communities of America's ओरिजिनल मतलब नेटिव पीपल, और जो सिविलाइज्ड यूरोप के पीपल है, इनके में कितना डिफरेंस है, जिस तरीके से ये लोग रहते हैं, या द वे दे अंडरस्टैंड थिंग्स इन देयर बिहेवियर चेंज एंड द अदर थिंग्स. सो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स, ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, ये आर्ग्यू करते हैं that just as there were no primitive people to be found in Europe, the American natives too would die. Just think what they are saying कि यूरोप में भी तो कभी होंगे प्रिमिटिव पीपल, बट क्योंकि अब नहीं है, तो जो अमेरिका है वहां पे भी हो सकता है जो नेटिव्स हैं, दे विल डाई ऑफ विद टाइम. एंड सिमिलरली हमने इस चीज का मेंशन ये पहले भी पढ़ा था कि एक फ्रेंचमैन ने यही बोला था दैट नेटिव पीपल या प्रिमिटिव पीपल एक्चुअली वेरी हार्ड टू सर्वाइव. एंड मतलब बेसिकली इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि इतने प्रिमिटिव पीपल है, दे डू नॉट सूट टू द प्रेजेंट सिनारियो और समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. बट इट वाज नॉट सो. दीज वर पीपल अगेन, दे वर वेरी, you can say, not that developed in terms of market sense and literate and these, but these were the good people and they were good at their own work. Okay, so through this portion of the book we have understood basically कि क्या ideology थी about the native people, and then how did they take over their lands, how did they exploit them, and these kind of things. Okay, so with this we have completed the topic that how the native people lost their land by maybe taking extra advantage of their जो समवेयर वी कैन से इनोसेंस, कि उनके लैंड ज्यादा ले लिए थे या पैसे कम दे दिए थे, फिर उनसे जबरदस्ती लेके उनको वेस्ट साइड को शिफ्ट कर दिया था, वहां से भी उनको शिफ्ट कर देते थे अगर कोई रिसोर्सेज मिलते थे, फिर रिजर्व्ड एरिया में कर दिया था. एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर बीइंग basically done with these people, and their lands were taken. They though protested it at certain level, but then they did not they were not able to win over their protest, and finally they had to give up. But the Americans, the so-called Americans means the European जो आए थे, they were able to have a lot of control over these native people's land. Okay, so this is it for today. In our next class we'll do about the gold rush, कि gold की पता चला कि gold मिला तो कैसे Europeans started to find, search for it, और कैसे सब लोग, everyone wanted to get hold of the gold that is found there. Okay, so this is what we'll be doing tomorrow in our next class. Today we have completed till how the native people lost their lands. So if you have any doubt relating to this topic, come back with your problems and your problems will be solved. So see you all in the next class.